morning, my dear students. We've already started with chapter 7, that is plant living and surviving. In the previous class, we learned about the terrestrial plants. क्या होते हैं terrestrial plants? Terrestrial plants are the one that grow on land, right? Because they have the different characteristics. On the basis of that, they live in a particular environment. ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि the plants which grow in desert, उनकी अपनी characteristics होती हैं. The plants which grow in marshy areas, उनकी अपनी characteristics होती हैं, right? We also discussed in hot and damp areas. Okay. Now we are going to learn another category of plants, जिसको हम क्या कहते हैं? Aquatic plants. Aquatic का क्या मतलब होता है? Aquatic means the plants that grow in water. Whenever we heard about aquatic word, it is related to water. ठीक है, तो plants जो water के अंदर grow करते हैं, they are called as aquatic plants. Have you ever seen a pond? आपने कभी pond देखी है? Pond में क्या होता है? There are so many plants over there. कुछ plants ऊपर नजर आते हैं, कुछ plants बिल्कुल pond के अंदर नजर आते हैं. तो depending upon that, we are going to learn 3 type of aquatic plants, right? So what are aquatic plants? Plants that grow in water. They are called aquatic plants, right? So let us start with the first category, that is, we have 3 type of aquatic plants: floating plants, fixed plants, and we have underwater plants, right? Let us first talk about floating plants. Floating का मतलब क्या होता है? जो float करता है. Float मतलब बिल्कुल पानी के ऊपर रहता है. ठीक है, तो float कोई चीज कब करती है? Float तब करती है जब वो light weight की हो. ठीक है, यहाँ उसका साइज बड़ा कम हो या बड़ी लाइट वेट की हो. तो ये जो प्लांट्स होते हैं they are very light in weight and or either you can say they are small in size. इसी वजह से ये they float, right? And the example for this plant is duckweed and water lettuce. अब इसमें क्या करते हैं? बेसिकली आपने देखा होगा they protect the small aquatic animals जो पानी के अंदर होते हैं, उन्हें heat of the sun से protect करते हैं. This is one of their characteristics. ठीक है, तो why do they float? Because they are very small in size, or we can say they are light in weight. That's why they can float. ठीक है, so you have to learn examples also related to each and every type of plants. Clear to you? So floating means which can float, which are light in weight, which are small in size, right? Okay, so let's come to the next category, that is your fixed plant. Fixed का मतलब क्या होता है? Fixed का मतलब होता है कि उनके जो रूट्स होते हैं वो बॉटम ऑफ पॉन्ड जो होता है ना, उसमें फिक्स्ड होते हैं वो, राइट? एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो एग्जांपल है वो है लोटस. आपने कभी लोटस देखा होगा, उसकी जो लीव्स होती है ना, बड़ी ब्रॉड होती हैं, वो पानी के ऊपर आपको नजर आती हैं. वो इतनी ब्रॉड होती हैं कि इवन बर्ड्स अपना नेस्ट बना सकते हैं उसके ऊपर. रेस्टिंग प्लेस है बेसिकली, इट्स अ रेस्टिंग प्लेस फॉर द बर्ड्स. बर्ड्स आराम से रेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर. और वो जो उसकी जो लीफ होती है ना, अब क्योंकि वो पानी के ऊपर होती है, तो वो ब्रीथ कैसे करते हैं प्लांट्स? हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ? किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? थ्रू टाइनी पोर्स विच आर कॉल्ड स्टोमेटा. अगर आप इफ यू रिमेंबर स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. लेकिन इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्योंकि ये वाटर के ऊपर होता है, तो वो ब्रीथ कैसे करेगी? हाउ द लीव्स आर गोइंग टू ब्रीथ? तो इसमें क्या होता है? इट्स अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके जो स्टोमेटा होता है, इट्स प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द लीफ. स्टोमेटा ऊपर होता है इसके, अपर साइड ऑफ द लीफ. ठीक है, सो दैट द लीव्स कैन इजीली ब्रीथ, प्लांट्स कैन इजीली ब्रीथ. ठीक है, हम इसको फिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. दैट इज व्हाई कॉल देम फिक्स्ड प्लांट्स, राइट? और इनकी लीव्स ब्रॉड होती हैं और इनकी स्टेम बड़ी हॉलो और लाइट वेट की होती है, right? That's why the leaves are broad and they can even present or float on water. लेकिन हम इसको फिक्स कैटेगरी में इसलिए डालते हैं क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो बिल्कुल they are attached to the bottom of the pond, right? And the example is lotus, right? Now let's come to the last category, that is basically your underwater plants. Underwater plants का मतलब क्या होता है? जो पानी के अंदर होते हैं. आपने कई बार एक्वेरियम देखा होगा. एक्वेरियम में पानी होता है, फिश होती है, ठीक है. अब उसके साथ साथ प्लांट्स भी होते हैं उसमें कुछ, राइट? अब वो जो प्लांट्स होते हैं, दे आर अंडर वाटर प्लांट्स, जो पानी के अंदर होते हैं,
राइट, उनमें कुछ स्टोमेटा नहीं होता क्योंकि वो ब्रीथ ही नहीं कर सकते ऐसे, वो बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी मतलब एक्वेरियम्स के लिए हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो ये प्लांट्स होते हैं, जो फिश होती है, फिश क्या एक्सेल करती है, क्या कौन सी गैस रिलीज करती है, दैट इज बेसिकली योर कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, राइट। और बिल्कुल यू नो दे अराइज इन क्लस्टर्स, बहुत सारे एक साथ निकलते हैं ये रूट्स में से, and you know that's why we use them in aquariums, they look very beautiful, right? So इसके जो examples हैं, we have tape grass, we have pondweed, right? So you must know इसका name ही इसी तरीके से दे रखा है because of their characteristics, right? So let us recall what are aquatic plants. Aquatic plants are the one that grow in water. कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ये, फर्स्ट इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब वो जो फ्लोट करते हैं, और फ्लोट क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर इधर स्मॉल इन साइज और लाइट इन वेट। सेकेंड कैटेगरी कौन सी है, दैट इज बेसिकली योर फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट क्यों कहते हैं फिक्स्ड प्लांट, बिकॉज दे रूट्स आर अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, और इनकी लीव्स होती है ब्रॉड, स्टोमेटा होता है अपर साइड पे, सो दैट द लीव्स कैन इजीली ब्रीथ, ओके। एंड थर्ड कैटेगरी कौन सी आती है, अंडर वाटर, जो वाटर के अंदर होते हैं, राइट। और जनरली हम इसे कहाँ यूज करते हैं, एक्वेरियम में। क्यों यूज करते हैं, सो दैट यू नो दे डोंट हैव स्टोमेटा। वो कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रू द बॉडी सरफेस, राइट। I hope it's clear to you now all the three things. For your homework, you'll be reading page 59 and 60. Right? Thank you so much.